अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब जारी है। And the green shoe option was exercised and we upsized it at $750 million. And from my perspective, the most significant trade has been the Panda bond, because we have been at it at least for the last 7 to 8 years, and not tapping the second largest, second deepest capital market in the world has been a miss on our part. So moving forward with the inaugural Panda bond issuance, which had 5 times oversubscription, notwithstanding the credit enhancement that we had from ADB and AIB, there was a sovereign component in there as well, and we got a record low price for a 3-year issue. And we are not stopping here. We have just issued RFPs for Sukuks, for Eurobonds, and for the first time, dollar-settled rupee-linked bonds, because we do want to go back into the international capital market and extend the maturities of our international debt as we move forward. And from my perspective, a lot of these are going to be actually replacement trades. These are not going to be incremental debt that we have, and how we replace some of the bilat stuff, I think is going to be part of the picture as we move forward. Now, on the back of this, we saw, because जब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल साइड पे क्या हुआ, मैक्रो स्टेबिलिटी में क्या हुआ, और फिर उसका कोई इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ द रियल इकोनॉमी और नॉट, तो वो भी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं which are actually quite encouraging, that the company registrations crossed 300,000 for the first time last year. 11 IPOs on the Pakistan Stock Exchange, which is a 20-year high in the last fiscal year. और जब कोई IPO करता है, आप सब यहाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो वो किसी वर्किंग कैपिटल के लिए IPOs नहीं होते, ये केपेक्स के लिए होते हैं. These are for new ventures, etc. So I think again this is very good news, and I'm not even talking about where the PSX is at this point in time, because I think the activity drivers are more important than the PSX numbers. और उसी में जो number of investors which have grown, and more importantly the Gen Z investors which are coming in, I think is very, very promising from that perspective. And then the corporate profitability, which has returned to double digits, I think all they bode well for this fiscal year as we move forward. Now, we used some of this fiscal space which was available. I go back to the macro stability, माशी इस्तेहकाम की बात होती है कि जी what's the big deal? The big deal is that we use this fiscal space available when some of the exogenous shocks come in. तो पिछले साल जब 25 के floods आए, तो unlike 22, we did not go running for international appeals. We used the resources which we had mobilized locally for rescue and relief, etc., although this flood was more intense than the 22 part of it. But more importantly, how we used it for the budget for this year. पहली बात तो ये है कि इस साल का जो बजट है, जो I think ज़फर मसूद साहब ने भी जिक्र किया, this was led by the tax policy office. As you know, the tax policy office moved to the finance division. Tax administration stays with FBR, and I'll talk about it in a bit more detail a bit later. So इसका मकसद ये था कि when we talk about tax policy, when we talk about budget, we should be led by economic value considerations, not how you make the math work. And in this budget, we have made the first attempt to do exactly that. तो उसमें हमें जितनी हमें space available हुई, we focused on export-led growth, removing the advance tax, removing the super tax, low-cost subsidized financing, and continuing with the tariff regime. Because ये भी ironical है कि when people are looking for consistency of policy, a tariff regime which we rolled out last year, over the next 5 years, how we are going to reduce RDs, ACDs, CDs
to make our industry more competitive by reducing the cost of intermediate goods and raw materials, उसी में से कुछ लोग आए वापस कि नहीं जी इसको इस साल सस्पेंड कर दीजिए. And I'm very grateful to the Prime Minister and the Cabinet that we stayed. आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि रिवायती बैंकारी निज़ाम को डिजिटल बैंकारी में तब्दील करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं. बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग दिया जा रहा है. बैंकारी इसलाहत से कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ है. उनका मज़ीद कहना था कि पांडा बॉन्ड्स का कामयाब इजरा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है, जबकि बैंकारी शोबा मुल्क की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है. बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. डीसी ज़ियारत के मुताबिक कुछ मांगी फेज़ 3 में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. शहदा को DHQ अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल किया गया है. पुलिस के मुताबिक कल रात से दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी था. आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्द के हमले के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. डीसी ज़ियारत के मुताबिक कुछ मांगी फेज़ 3 में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. शहदा को DHQ अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल किया गया. पुलिस के मुताबिक कल रात से दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी था. आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं. बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. डीसी ज़ियारत ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. डीसी ज़ियारत के मुताबिक कुछ मांगी फेज़ 3 में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. शहदा को DHQ अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल किया गया है. पुलिस के मुताबिक कल रात से दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी था, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं. पुलिस बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. डीसी ज़ियारत के मुताबिक मांगी फेज़ 3 में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. शहदा को DHQ अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल किया गया है. पुलिस के मुताबिक कल रात से दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी था, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं. बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया. ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है. इजलास में कौमी अहमियत के मामलात पर गौर किया जाएगा. मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा. दौरान इजलास दाखिली अमन और सिक्योरिटी इंतजाम भर भी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी. ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे, जब मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन की समरियां भी मंजूर की जाएंगी. काबीना के सामने ये समरियां भी रखी जानी है. इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. जी राना जामीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब किया है. ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है. इजलास में कौमी अहमियत के अहम मामलात पर गौर किया जाएगा. मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा. दौरान इजलास दाखिली अमन और सिक्योरिटी इंतजाम पर भी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी. ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसले तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन की समरियां भी मंजूरी के लिए काबीना के सामने रखी जाएंगी. ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन ने इजलास से मुतल्लिक तमाम वफाकी वज़रा और काबीना अरकान को आगाह कर दिया है. जी
बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जस्से खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचा दिया गया है, जहां आज एक बार फिर नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वाज़िह रहे कि इससे पहले तेहरान में भी नमाज जनाजा अदा की गई थी, जहां आलमी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की थी। लोगों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि खला से भी हुजूम देखा जा सकता था। ईरानी मीडिया ने कहा है कि खामनाई के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने सेटेलाइट तस्वीर भी जारी की हैं, जिसमें जुलूस जनाजा में शरीक अफराद को देखा गया है। रॉयटर्स के मुताबिक जुलूस जनाजा कौमी सतह पर अल वदाइया से बढ़कर था। जुलूस जनाजा बाद जंग मुजाहमत की अलामत था और इसमें लोगों का ठाठें मारता समुंदर भी मौजूद था। माहिरीन के हवाले से रॉयटर्स का कहना है कि शुरा ने अमेरिका और इसराइल को पैगाम दिया है कि ईरान के हिस्से बखरे करने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ईरान इस जंग में महफूज रहा और यही बका और मुजाहिमत ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली की बुनियाद बनेगी। माहिरीन के मुताबिक इस जुलूस जनाजा में आबना हुर्मुज़ पर ईरान का असर रसूख बढ़ाया है और इस काबिल किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई भी डील इस बात को तस्लीम करने से जुड़ी हो कि इस आबना हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करता है। गजा पीस बोर्ड ने हमास से मुतालबा किया है कि वादे नहीं अमली इक़दाम चाहिए। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि हुक्मरानी, सिक्योरिटी और इक़्तिदार की मुंतकली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दिए जाएँ, रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। पीस बोर्ड का मज़ीद कहना है कि हथियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकली से कौमी इंतजामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 2 दहाइयों से इंतजामी उमूर संभालने वाले अदारे को हमास की जानिब से तहरील करने के फैसले का नोटिस लेते हुए इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हम हर ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करते हैं जो जंग बंदी के माहदे पर अमल दरामद में मुआविन साबित हो और सलामती कौंसिल की मुतलका करारदातों में बयान करदा मकासद के हुसूल को आगे बढ़ाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ग ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदारा बदस्तूर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में मुत्तहिदा फ़लस्तीनी तर्ज़ हुक्मरानी के क़याम की कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी इलाक़ों में एक मुत्तहिद और मौसर इंतज़ामी निज़ाम का क़याम ख़ित्ते में इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग़ के लिए अहम है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक ग्रुप ने गजा के डॉक्टर हसाम अबू सुफिया की इसराइली हिरासत को मनमानी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इंसानी हुकूक की तंजीमों और डॉक्टर अबू सुफिया के वकील ने खबरदार किया है कि उनकी जान को फौरी और संगीन खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि इसराइल की जानिब से डॉक्टर हसाम अबू सुफिया की गिरफ्तारी इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये और शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताद्दिद शिक्कों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि डॉक्टर हसाम को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक उन्हें मुआवजा और दीगर कानूनी तलाफी का काबिल निफाज हक भी फराहम किया जाए। लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बरी ने जनूबी लेबनान के देहात और कस्बों के मेयर्स बिलखुसूस मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी अहदेदारों को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इन दावों की तरदीद करने पर सराहा है। लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बरी ने कहा वो सरहदी देहात और कस्बों के बल्दियाती सरबराहान और मजहबी शख्सियात की जानिब जारी किए गए बयानात और इख्तियारात किए गए मौक़िफ़ को सराहते हैं। उन्होंने कहा है कि इन बयानात को भी सराहता हूँ जिनमें नेतन्याहू के इन झूठे दावों को मुस्तरद, रद्द और बेबुनियाद करार दिया गया है। इन इलाकों के अवाम इसराइली काबिज़ रियासत के साथ इल्हाक चाहते हैं। नबी बरी ने कहा है कि सरहदी इलाकों के अवाम और मुकामी क़यादत का मौक़िफ़ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वह अपने कौमी मफाद, खुद मुख्तारी और वतन से वफादारी पर कायम है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सरहदी देहात के अवाम के मौक़िफ़ ने साबित कर दिया है कि वह अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और लेबनान की खुद मुख्तारी के हवाले से यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं।
रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर मिसाइल हमले के नतीजे में मजीद 24 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने मुसलसल दूसरे हफ्ते कैफ में अहदाफ मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है जिसके नतीजे में कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हमला अहम नेटो समिट से एन एक दिन कबल किया गया। सुबह के वक्त किए गए हमले में कैफ के जिला में एक कसीर मंजिला रिहायशी इमारत में गहरा गड्ढा पड़ गया है जिससे इमारत की कई मंजिलें दो हिस्सों में बंट गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल अलर्ट के दौरान 10 से ज्यादा धमाके सुने गए जबकि आसमान में रोशनी की चमक भी देखी गई है। हुकाम के मुताबिक रूसी हमले के नतीजे में दारुल हुकूमत कैफ में 16 अफराद हलाक हुए जबकि शहर के मुजाफाती इलाके वस्नेवे में मजीद 8 अफराद जान से गए हैं। इन हमलों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को बेईमाना हमला करार देते हुए कहा है कि रूसी हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई। उनका मकसद यूक्रेनी अवाम और यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान और तकलीफ पहुंचाना है। उधर नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने अनकरा में कहा है कि नेटो इत्तेहादियों और शराकतदारों को यह यकीनी बनाना होगा कि यूक्रेन को वो सब कुछ मिले जिसकी उसे जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली मियां शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद औन जहांगीर ने मुलाकात की है जिसमें अवामी मसाइल के हल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। कहना सानिहा में दुखी वालिदैन से इजहार ताज़ियत और बच्चों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को तीसरा सरप्लस बजट पेश करने पर मुबारकबाद भी पेश की है। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने पर खराज तहसीन पेश किया है और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबा तहसील लेवल पर शुरू करने के इक़दाम को सराहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अरकान सूबाई असम्बली को अपने अजला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत की हैं। उन्होंने अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से भरपूर एतमाद पर इजहार तशक्कुर किया है। अरकान सूबाई असम्बली का कहना था कि अवामी फलाही विजन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स काबिल तारीफ हैं। मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी उमूर, सफाई सुथराई और सरकारी सतह पर सबीलों के एहतमाम ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के बच्चों और ख़वातीन के लिए एहतरामी इक़दामात और प्रोजेक्ट्स काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद नवाज शरीफ से ही सीखा है। दही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआलजे की सहूलतें घर की दहलीज पर मिल रही हैं। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर में 1.25 लाख के लगभग घर तेजी से तकमील के मराहिल में पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बच्चों और ख़वातीन के इख्तरामी इक़दामात और प्रोजेक्ट्स काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद नवाज शरीफ से ही सीखा है। दही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआवजा की सहूलतें घर की दहलीज पर मिल रही हैं। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर में 1.25 लाख के लगभग घर तेजी से तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फलाही विजन, अवामी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स काबिल तारीफ हैं। मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी उमूर, सफाई सुथराई और सरकारी सतह पर सबीलों के एहतमाम ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के बच्चों और ख़वातीन के लिए इख्तरामी इक़दामात और प्रोजेक्ट्स काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद नवाज शरीफ से ही सीखा है। दूसरी जानिब गुजरांवाला के थाना वांटू के इलाका में 10 साल बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। नामालूम मुलज़िमान ने 10 साल शुएब के पेट को चाक कर दिया। आंतड़ियां बाहर आ गई हैं। बच्चे की लाश सेज कॉलर गवर्नमेंट स्कूल के करीब से बरामद हुई है। वाक़े की इतला पर पुलिस के आला हुकाम भारी नफरी समेत मौका पर पहुंच गए। इमदादी टीमों को भी तलब कर लिया गया है। पुलिस हुकाम ने इमदादी टीमों की मदद से बच्चे की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया है कि मुलज़िमान
मुल्ज़मान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है, जिन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करने वालों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाकर ही दम लेंगे। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, गोजरावाला के थाना वाहडू के इलाका में 10 साल बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। नामालूम मुल्ज़मान ने 10 साल शुएब के पेट को चाक कर दिया, आंतड़ियां बाहर आ गई हैं। बच्चे की लाश सेज कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल के करीब से बरामद हुई है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस के आला हुक्काम भारी नफरी समेत मौका पर पहुंच गए। इमदादी टीमों को भी तलब कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम ने इमदादी टीमों की मदद से बच्चे की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस हुक्काम ने मजीद बताया है कि मुल्ज़मान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान की कप्तानी करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इंटरव्यू में कहा है कि माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है, मुस्बत सोच के साथ टीम को लीड करूंगा। बतौर कप्तान अपने फैसलों का जायजा लिया, सीखने की कोशिश की। बाबर आजम ने कहा कि कोशिश है नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट दबाव का खेल है, नौजवानों से बात करके उन पर दबाव कम करने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट टीम के कप्तान का मजीद कहना था कि मेरी तवज्जो 3 चीज़ों पर है, डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस। इन पर कोई समझौता नहीं होगा। हाँ सलमान भाई, जब भी आप पाकिस्तान की कैप्टन बनते हैं या आपको मिलती है तो एक ऑनर की बात है। और पहले भी जब मिली थी मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात थी और उसमें काफ़ी कुछ सीखा। देखें, आप जितनी भी कप्तानी करते हैं और उसके बाद फिर बीच में आपने थोड़ा सा एज अ प्लेयर खेलें तो उस दौरान बड़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। जब आप एज अ कप्तान थे तब भी उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद जो एज अ प्लेयर खेले तब भी बहुत सी चीज़ें सीखी। और अब फिर कप्तानी मिली है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और काफ़ी कुछ सीखें चीज़ें सीख के इम्प्रूवमेंट आई है और मैच्योरिटी आती है। जब भी आप खेलते हैं तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो इंशाल्लाह इस बारी जो है वो अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छे माइंडसेट के साथ इसको आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 27वां यौम शहादत है। लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाई, शदीद जख्मी होने के बावजूद मुहाज ना छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालक जान शहीद को निशान हैदर दिया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ ऑफ शहीद ने हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादर वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया है। शहदाए पाकिस्तान के मादर वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 1999 में आज के दिन हवलदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया और शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी पोस्ट का दिफा किया। इनखला से इनकार करते हुए वो इस वक्त तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने फ़र्ज की अदायगी में शहादत कबूल नहीं कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कारगिल जंग के दौरान वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी को सलाम और अकीदत पेश किया और कहा कि कौम आज कारगिल जंग के अजीम हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की जुर्रत और अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करती है। शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद की कुर्बानी आइंदा नस्लों के लिए जुर्रत और अज़्म की रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हम अपने बहादुर सपूत लालक जान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कौम को अपने अजीम सपूत लालक जान शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। शहीद की कुर्बानी पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी अल्फाज में हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी है। दुश्मन के हमले हवलदार लालक जान शहीद के हौसले पस्त न कर सके।
जहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध का सरकारी अफसरान और मुलाजमीन बशमूल पुलिस के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नोटिस ज़ाती तशहीर से रोक दिया है। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन बशमूल पुलिस एहलकारों की जानिब से ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकारी फ़राइज़, दफातर, गाड़ियों, वर्दियों और दीगर सरकारी वसाइल की तशहीर पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी कराची हमारे साथ मौजूद हैं मीरा खुरम शहजाद। जी मीरा खुरम, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर आला सिंध का सरकारी अफसरान मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती से नोटिस ज़ाती तशहीर से रोक दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी अफसरान मुलाजमीन बाशमूल पुलिस एहलकारों की जानब से ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकारी फ़राइज़, दफातर, गाड़ियों, यूनिफॉर्म और दीगर सरकारी वसाइल की तशहीर पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आला सेक्रेटरी सिंध की जानब से चीफ सेक्रेटरी सिंध, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध को इरसाल किए गए मरासले में कहा गया कि बाद सरकारी अफसरान मुलाजमीन अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को ज़ाती तशहीर के लिए सोशल मीडिया पर नुमायां कर रहे हैं, जो सरकारी मुलाजमीन के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। मरासले में तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की गई है कि वो अपने मतहत अफसरान मुलाजमीन को फौरी तौर पर ऐसी सरगर्मियों से बाज रहने की हिदायत जारी करें। वज़ीर आला सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया कि इससे पहले सोशल मीडिया पर मौजूद अपनी पुरानी जितनी भी सरकारी गाड़ियों की, यूनिफॉर्म की और इमारतों की तशहीर की गई है उसको हज़फ किया जाए। हदायत पर सख्ती से अमल करने के लिए मुतल्लिका कवानीन, सर्विस रूल्स के तहत महकमाना और ठीक है कानूनी मियां खुरम कार्रवाई शहजाद, अमल में बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब कराची में शाहराहे नूरे जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुबैना बैन सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग के 4 मुलजमान को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुलजमान जख्मी जबकि 2 को बिला ज़र्ब गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान के कब्जे से असलहा और हाई रूफ भी बरामद कर ली गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में शाहराहे नूर जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुबैना बैन सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग के 4 मुलजमान को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुलजमान जख्मी जबकि 2 को बिला ज़रब गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान के कब्जे से असलहा और हाईरूफ भी बरामद कर ली गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में शाहराहे नूर जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुबैना बैन सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग के 4 मुलजमान को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं जबकि 2 को बिला ज़रब गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान के कब्जे से असलहा और हाईरूफ भी बरामद कर ली गई हैं। आपको हम खबर दे रहे हैं कि कराची में शाहराहे नूर जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुबैना बैन सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग के 4 मुलजमान को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची जुल्फ़कार अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्फ़कार अली, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची के इलाके कट्टी पहाड़ी ब्लॉक क्यू में शाहराहे नूर जहां पुलिस ने मुश्तबा हाईरूफ को रोकने का इशारा किया तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजमान जख्मी जबकि 2 को बिला ज़रब गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद दानिश, अकबर, हुसैन और अतीक और रहमान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 3 बोर पिस्टल, लोड मैगजीन, 26 गोलियां जिंदा और 1 सरकाशुदा हाईरूफ बरामद हुई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान कराची से चोरी या छीन कर बलूचिस्तान में गाड़ियां फरोख्त करते थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा AVLC और दीगर इदारों में मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब में मुकदमे दर्ज हैं। मज़ीद तफसीलात जारी है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार अली, आप हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास इकबाल टाउन और सदर जवियन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आशूरा मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि चेहलम हजरत इमाम हुसैन और उर्स दाता गंज बख्श पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। मुनशात के खात्मे और जुए के अड्डों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए। फाइनेंशियल क्राइम्स के मुकदमात की तफ्तीश पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बेगुनाह की गिरफ्तारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अफसरान गेटेड कम्युनिटी के फरोग के लिए सोसाइटी की इंतजामिया को एतमाद मिले। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।